Good evening, students. Today we will start your social science history in the NCERT syllabus for the CBSE students. The title of the book is having India in the Contemporary World. Now, India is compared to contemporary world. What is the meaning? Let us understand this title first. Contemporary. What the meaning of contemporary is? Of the same time, of the same period. Suppose if we are talking about 1800, 18th century, the situation of the world compared to India in the 18th century. If 19th century, then 19th century. Like that the meaning of contemporary is. So, first chapter is the rise of nationalism in Europe. As you can see the title and the picture is also given, image 1 figure 1 is also given. Let us see the figure because it is described further. You can see the Statue of Liberty, you can see the heaven, sages, angels, Jesus Christ, and you can see different types of people, different types of flags. They are passing through the Statue of Liberty. It is explained further. The figure 1 says the dream of worldwide democratic and social republics, the pact between nations, a print prepared by Frederick Sorue 1848. So we are talking about the period or the year 1848 and this figure was prepared by Frederick Sorue. Pact is the agreement between nations, we can say. Let us start the lesson now. In 1848, Frederick Sorue, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. Now you know that before this, means before this period or the previous history, we know that there were always kings and monarchs everywhere. There was no democracy, there was no rule of people anywhere in the world. So it all started in, we can say, 18th century. Like that we can say in the whole world this democracy spread after the 18th century. So Frederick Sorue, who was a French artist, he prepared a series of 4 prints, 4 images or figures, and he visualized, means he imagined a dream of a world made up of democratic and social republics, means where there is democracy and where is the rule of people, social republics as we call them. The first print, figure 1, as we saw earlier, of the series shows the peoples is given, but people already it is a collective noun, so we should always read it people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train. Here train means queue, a line is there. Here train means a line, a long line is there. They are marching towards this statue and going after that and offering homage to the statue. Homage means respect to the Statue of Liberty as they pass by it. Liberty, what is liberty? It is freedom, the Statue of Freedom. So as they are becoming free, they are passing through that statue, means they are getting freedom or they are becoming democratics or social republics, and they are paying respect to the Statue of Liberty or Freedom. As you would recall, as we will memorize or remember, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. You know, in standard 9 NCERT book SS, you studied about French Revolution, where liberty was given a female structure or personified as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand. In one hand, the Statue of Liberty has torch of enlightenment or knowledge, enlightenment or knowledge, we can say. And the charter, what is a charter? It is a document of the rights, means things are written. Document it is of the rights of man in the other. What are the rights of man which were not there previously in the rule of the kings and
monarchs, dictators, kings and monarchs used to rule. On the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Absolutist, it is given literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised, means monarch or despots or dictators, we can say. Those who had all the powers, whatever they say, that was the command. There was no written document or no rights of the people, we can say. Whatever the king or the despot or the ruler said, it was to be done. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized, and repressive. How were these governments centralized? Only king's court was there, all the ministers were there, and they all used to obey the king. Militarized, the army, it was of the king, and repressive, and they were cruel rulers, means if nobody or anybody, we can say, opposed them, they used to be killed or given severe punishment. So remains means as they are getting freedom, the remains are there, wreckage is there, or we can say debris are there of the absolutist institutions. Now they are not having any rule. In Soryu's utopian vision, what is utopian? It is already explained. A vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. Ideal means perfect, a perfect society he believed after the rule of the kings, utopian rulers should be there, or the utopian rule should be there. But it is a perfect society which is not likely to exist. Rarely it can exist. That vision can exist. The people of the world are grouped as distinct nations, means these people whoever are shown, they are the nations actually, or people they are representing their nations, identified through their flags, उनके अपने अपने झंडे हैं अपने हाथ में, and national costume, their national costume is there. Like this we can identify which nation through the people. लीडिंग द प्रोसेशन, जो जुलूस है, प्रोसेशन है, वो लीड कर रहे हैं. जैसे तुम देखते हो ओलंपिक्स की गेम हो या परेड हो, तो जैसे लीड किया जाता है उसके पीछे सब चलते हैं. तो एक प्रोसेशन चल रहा है, लोग हैं, उनका पहनावा है, उनके झंडे हैं, वो अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं. वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. अब जो लिबर्टी के स्टैचू क्रॉस कर चुके हैं, मीन्स दोज हैव अटेन्ड फ्रीडम, आर फ्री, आर सोशलिस्ट और आर रिपब्लिक, आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड. Then those two states are there, United States and Switzerland. They are away from the rule of monarchs, which by this time were already nation states. So they have already attained freedom and they are nation states. France, identified by the revolutionary tricolor. Also France is there, identifiable means it can be recognized by the revolutionary tricolor, Krantikari tricolor flag it is having, has just reached the statue. Switzerland and America already got, and France has just knocked the door of democracy or socialist republic, we can say, as it has reached the statue. She is followed by the people of Germany. Then next there is Germany, bearing the black, red and gold flag, bearing their national flag. Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. They were under the rule, we can say, but not yet we can say united nation. They were divided, distributed. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. जो जर्मन स्पीकिंग अलग अलग प्रिंसिपलिटीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो अभी तक जैसे डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिक नहीं बने, पर उसने ऐसा इमेजिन किया है सोरेन्यू कि ये जो है जर्मनी वो एक यूनिफाई हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएगा अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. उसका खुद का एक संविधान होगा और लोगों का राज होगा वहाँ पर. ऐसा लिब होप्स है, यानी कि आशा करते हैं कि वो भी एक दिन स्वतंत्र होगा. फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स, और जर्मनी के पीछे है लोग, यानी कि कौन सी देश है, ऑस्ट्रिया,
द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये सब उनके पीछे पीछे मीन्स ये सब फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं. फ्रॉम द हेवंस अबव, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी सॉ द इमेज. स्वर्ग में से कौन देख रहा है? तो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है. सेंट्स मीन्स संत महात्मा है. एंड एंजल्स मीन्स फरिश्ते हैं. गेज अपॉन द सीन, गेज मीन्स लुक कॉन्सेंट्रेटिंगली, एकदम ध्यान से उनकी तरफ देख रहे हैं, इनकी तरफ. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, अब उनको क्यों दिखाया गया है आर्टिस्ट के द्वारा? टू सिम्बलाइज, तो चिन्हित करने के लिए. फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि ये जो अब फ्रीडम होगा तो ये लोग सब एक होके रहेंगे, भाईचारा अपनाएंगे, एक दूसरे से झगड़ा वगैरह करेंगे नहीं. उससे तो उन्होंने अभी छुटकारा पाया है, राजाओं के रूल, मोनार्क के रूल से वो लोग बाहर आए, तो अब वो सब मिलजुल के रहेंगे, एक फ्रेटर्निटी की तरह रहेंगे, ब्रदरहुड की तरह या ब्रदरहुड अपनाएंगे. दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोर्यू. अब ये जो चैप्टर है उसमें सोर्यू ने जो जो कल्पना की थी, विजुलाइज किया था फिगर 1 में, वो उसमें से बहुत सारे इश्यूज, मैटर्स पे बात की जाएगी. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब है 1801 से 1900 तक, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स, राष्ट्रीयता एक फोर्स की तरह बाहर आया, एक पावरफुल फोर्स की तरह, विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, लोग कुछ अलग सोचने लगे, पॉलिटिक्स में चेंज आया, लोगों की मेंटालिटी में चेंज आया यूरोप में. स्वीपिंग चेंजेस में बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे चेंजेस हुए. स्वीप का मतलब है झाड़ू, यानी कि जो पुराने ख्यालात थे वो झाड़ू ने उसके ऊपर या तो झाड़ू फिर गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. मल्टीनेशनल डायनेस्टिक मीन्स बहुत सारे राज्यों के ऊपर उनका राज था, बहुत सारे एरियाज उनके अंडर में हुए थे. डायनेस्टिक मीन्स वंशवाद होता था कि उसी का बेटा राजा बनेगा, उसको डायनेस्टीज बोलते हैं, वंशवाद हुआ करता था. तो यूरोप में जो ये सब एम्पायर था, वंशवाद था, राजाशाही थी, वो सब खत्म होके एक नेशन स्टेट में सभी एक हैं ऐसा मान के अब वो आगे बढ़ेंगे. द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, आधुनिक एक राज्य, आधुनिक एक राष्ट्र बनेगा जो डेमोक्रेसी या रिपब्लिक पे आधारित होगा. इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. एक सेंट्रलाइज्ड पावर यानी कि जैसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल, और उसका पूरा कंट्रोल होगा. सोवरेन का मतलब फुल कंट्रोल होगा, टोटल कंट्रोल होगा ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. हाँ, ये इसका प्रदेश है, ये राष्ट्र है, ये वो राष्ट्र है, तो एक डिफाइंड टेरिटरी बन जाएगी, सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज बन जाएगी और उसके वो हम बोलेंगे गवर्नमेंट कहलाएगी. हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. ऐसा यूरोप में कई बहुत समय से ऐसा सब चल रहा था कि नेशन स्टेट बने, कि स्टेट हो जो नेशन कहलाए, जिसके अंदर एक डिफाइंड टेरिटरी हो. एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, सिर्फ उसके जो शासक हैं वही नहीं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. वन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, तो सिर्फ शासक नहीं पर जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं उसके, वो भी एक कॉमन आइडेंटिटी के मीन्स सब एक सिटीज़न कहलाएंगे सब. जैसे तुमको मालूम है पहले अलग अलग होते थे इंडिया में, जैसे थे हम लोग भारत में होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे, और 3 एस्टेट होते थे. फ्रांस में क्लार्जी होते थे, फिर पीजेंट्स होते थे, फिर हम लोग देखते हैं ये रूलर्स होते थे बीच में. ऐसे अलग अलग जो कैटेगरीज होती थी लोगों की, अब वो सब कॉमन हो जाएंगी. इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और सभी का उल्लेख हिस्ट्री में होगा और सभी की पहचान होगी हिस्ट्री के अंदर. नहीं तो पहले हिस्ट्री में जैसे आम लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता था, पर अब सभी के बारे में इतिहास दर्ज होगा. दिस कॉमननेस
डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। यो ये कॉमननेस है या हम लोग बोलते हैं समानता है, इक्वालिटी है, वो स्टार्टिंग से नहीं है, पहले से नहीं है दुनिया में। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स। फोर्स का मतलब टू फॉर्म विथ ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्षों के बाद ये प्राप्त किया गया, जिसको हम लोग कॉमननेस या इक्वालिटी बोलते हैं। थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स, इसमें नेता जुड़े थे, एंड द कॉमन पीपल, और आम लोग भी इसके अंदर जुड़े थे। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century यूरोप। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन से अलग अलग प्रोसेस, प्रक्रियाएं थी और मेथड्स थे, प्रोसेसेस थे, जिसके द्वारा विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म, नेशन स्टेट्स बने, नेशनलिज्म में राष्ट्रीयता की भावना लोगों में आई, केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। 19वीं सदी के यूरोप में ये सब कैसे हुआ, ये सब तरीका या ये सब प्रोसेस जो है वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। और फर्स्ट जो दिया है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। कुछ नोट्स दिए हैं यहाँ पर। अर्नस्ट रेनान, व्हाट इज अ नेशन। अब एक राष्ट्र क्या होता है तो उसका डेफिनेशन दिया है। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882, द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनान 1823 to 92 आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन। तो अर्नस्ट रेनान जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में 1882 में उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसमें नेशन क्या होता है उसकी एक व्याख्या, डेफिनेशन दी। द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश एज अ फेमस ऐसे एंटाइटल्ड क्वेस्ट सेक्विन नेशन, व्हाट इज़ अ नेशन, उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया था। इन दिस ऐसे, वो एक निबंध की तरह लिखा गया। रेनान क्रिटिसाइजेज द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। तो जैसे लोग बोलते थे कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, रेस होना चाहिए, रिलीजन और टेरिटरी कॉमन होनी चाहिए, तो उसने वो नकार दिया, उसके लिए उसने नकारात्मक व्यू दिखाया, क्रिटिसाइज़ किया। और उसने अपनी जो व्याख्या दी वो है नेशन इज़ अ कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मीन्स मिक्सचर हम लोग बोल सकते हैं, ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवियर्स, टॉलरेंस, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, अ हेरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये सब चीज़ें एक नेशन बनाता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people, or we can say citizens, a nation. A nation is therefore a large scale solidarity। अलग अलग तरीके के लोग रह सकते हैं, अलग अलग तरीके की भाषा होगी, अलग अलग तरीके के रेस रिलीजन के लोग रहेंगे, पर उनके बीच में यूनिटी होगी, सॉलिडारिटी होगी, बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट तो हमने देखा नीचे, a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। एक डायरेक्ट वोट के द्वारा लोगों से पूछा जाता है एक रीजन के बारे में और एक रीजन से रिलेटेड इशू के बारे में कि वो उनकी हाँ है या ना है। एक कोई प्रोपोज़ल, कोई प्रावधान, प्रोविज़न होता है, तो वो लोग उससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं, तो सब अपना उसमें वोटिंग देते हैं हाँ या ना के बारे में। अ प्रोविंस इन इस एंड इनहेबिटेंट्स, प्रोविंस मीन्स एक एरिया, एक रीजन क्या होता है, तो जो लोग रहते हैं उसके अंदर, इनहेबिटेंट्स उसमें जो ड्वेल करते हैं, उसमें जो रहते हैं। इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट। अब रीजन वो तो एक एरिया है, लैंड है, वो तो कुछ बता नहीं सकता है, तो रीजन के बारे में अगर कुछ बताना है या कुछ करना है तो कौन उसके लिए कंसल्ट किया जाना चाहिए, किसका परामर्श लेना चाहिए, तो हम बोलते हैं उसके जो रहवासी है, उस एरिया के रहवासी है। जैसे गुजरात है, तो गुजरात के लिए कोई डिसीजन लेना है तो कौन गुजरात का डिसीजन ले सकता है, तो गुजरात के लोग। गुजरात तो खुद एक स्टेट है, एक लैंड है, हम लोग बोल सकते हैं, वो कुछ बोल सकता नहीं है, तो हम जो उसके रहवासी हैं, इनहेबिटेंट्स हैं गुजरात के, वो इसके बारे में बता सकते हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will। अब कोई भी राष्ट्र किसी भी देश को
अपने साथ या अपने अंडर में नहीं रखना चाहता है उसकी इच्छा के विरुद्ध। एनेक्स का मतलब अटैच करना, जैसे कोई बड़े प्रदेश के साथ एक छोटे प्रदेश को अटैच करना। एनेक्सेशन पॉलिसी तुमने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, ब्रिटिश ने जो अपनाई थी, अलग अलग प्रदेशों को अपने साथ वो मिला लेता था, उसको एनेक्सेशन पॉलिसी हम लोग बोलते हैं। शायद लॉर्ड डलहौसी की वो पॉलिसी हुआ करती थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज़ अ गुड थिंग और नेसेसिटी वन। अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए और ये अच्छी बात भी है और ज़रूरत भी है। देयर एग्जिस्टेंस इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। और अलग अलग राष्ट्र हैं तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम करेंगे, वो उसकी लिबर्टी, फ्रीडम की गारंटी है। विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। दुनिया का एक ही शासक और एक ही नियम होगा तो ये फ्रीडम हम बोल सकते हैं कि ये फ्रीडम वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि नेशन क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग, पर साथ में रहें, एक दूसरे के साथ सॉलिड बन के रहें, यूनियन के साथ रहें, उसको हम लोग एक देश बोलेंगे। अब नाइन्थ में तुमने पढ़ा ही था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो यूरोप की बात करें तो फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के बारे में वापस से यहाँ पर दिया हुआ है। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। अब नेशनलिज्म के बारे में अगर जानकारी मिली या लोगों को कुछ समझ में आया तो वो था 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। तो तुमने जैसे पढ़ा था पिछले साल, तो फ्रांस वो मोनार्क के अंडर में था। एब्सोल्यूट मोनार्क मीन्स वो जो बोलता था फाइनल वही होता था, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में था। और फुल फ्लैज मीन्स फुल्ली डेवलप्ड एक टेरिटोरियल स्टेट था, बहुत सारे प्रदेश उसके अंदर हुआ करते थे। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो हमने देखा था कैसे मोनार्क का रूल तोड़ के अलग अलग लोग इकट्ठा होके, फ्रांस के अलग अलग जो एस्टेट्स थे वो मिलके मोनार्क का रूल हटा के फ्रेंच के सिटीजन्स के अंदर जो सोवरेनिटी थी, जो मोनार्क का रूल था वो हटा के फ्रेंच लोगों ने अपने लिए वो यानी कि सिटीजन्स बन गए और एक स्टेट बनाया, खुद का स्टेट बनाया, खुद की गवर्नमेंट बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस ऑल यू स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेन का मतलब डिक्लेयर्ड ऑफिशियली दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो लोगों ने ये जो क्रांति थी फ्रांस के अंदर, उसने ये तय किया कि लोग हैं वो आज के बाद henceforth मीन्स आज के बाद लोग होंगे जो एक नेशन कहलाएंगे और उसका भाग्य, उसकी डेस्टिनी वो खुद बनाएंगे, लोग बनाएंगे, कोई शासक, कोई रूलर या कोई मोनार्क या कोई किंग नहीं बनाएगा। तो आज से जो इम्पोर्टेंट होंगे अब के बाद वो लोग होंगे, पीपल होंगे, ऐसा तय हुआ था। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। अलग अलग नहीं है, सब एक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, सब कॉमन है, ऐसा उन्होंने तय किया था और उसी की ओर चले थे। दिस इन डिटेल यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal constitution। और ये जो आइडियाज थे ला पैट्री, द फादरलैंड यानी कि मातृभूमि, पितृभूमि, और सिटीज़न यानी कि नागरिक हैं सभी, ये एम्फोसाइज मीन्स इसके ऊपर जोर दिया गया, स्ट्रेस दिया गया। आइडिया था ये, द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी, सभी एक हैं, कॉमन है, एन्जॉइंग इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और सभी इक्वल हैं लॉ की दृष्टि में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बनाएंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज chosen to
रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो जो राजा महाराजा के जो फ्लैग होते थे उसकी जगह पे एक ट्राई कलर फ्लैग चुना गया, उसके फ्रांस के लिए नया फ्लैग चुना गया। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ये हमने 9th में स्टडी करा था कि स्टेट्स जनरल इलेक्ट हुआ था सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और उसको नेशनल असेंबली यानी कि एक नई शुरुआत नाम, राष्ट्रीय असेंबली नाम दिया गया था। द हिम्स वर कंपोज, मीन्स रिलीजियस सॉन्ग्स हम जो बोलते हैं हिम्स थे उसके बारे में लिखे गए। ओथ्स टेकन, और हम ओथ्स मीन्स प्रॉमिस दिया गया, वचनबद्ध हुए। एंड मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, कोमेमोरेटेड मीन्स उनको याद किया गया, जो शहीद हुए थे इस लड़ाई में उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सब एक राष्ट्र के नाम, ये सब जो हुआ है एक राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र के नाम ये बड़ा संदेश था। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। सेंट्रलाइज मीन्स यूनियन होगा, एक गवर्नमेंट होगी, और सेंट्रलाइज्ड होगा मीन्स लोग होंगे, कमेटी होगी, और असेंबली फॉर्म होगी, वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। यूनिफॉर्म मीन्स सबको, सबके लिए समान, हाँ, कायदे कानून बनाए गए जो नागरिक थे, सिटीजन्स थे विद इन इट्स टेरिटरी। फ्रांस के सभी लोग सिटीजन्स कहलाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा और सबके लिए समान कायदे कानून होंगे। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। तो इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो ड्यूज़ और जो बकाया रकम थी वो एबॉलिश, उसको दूर किया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, तो मापदंड के लिए, वजन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम अपनाया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स का मतलब होता है जो भाषाएं थी, रीजनल भाषाओं के कारण वो लोग सब अलग अलग गिने जाते थे, अलग अलग भाषाएं होती थी, उनको डिस्करेज किया गया। एंड फ्रेंच, एक राष्ट्रीय भाषा जिसको फ्रेंच बोलते हैं, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। पेरिस जो हम लोग बोलते हैं कैपिटल है फ्रांस का, तो वहाँ पे जो फ्रेंच भाषा बोली जाती थी बिकेम द कॉमन लैंग्वेज या मेन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है राष्ट्रीय भाषा, तो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बनी फ्रेंच। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। और ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने फर्दर मीन्स आगे ये डिक्लेयर किया कि उनका ये मिशन है, उनका ये टारगेट है, और डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, और फ्रेंच नेशन यानी कि फ्रांस की ये डेस्टिनी, उसका लक है टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। जो यूरोप, पूरा यूरोप है, उसको राजा के रूल से रहित किया जाए, उनको मोनार्क के रूल से हटा दिया जाए, और डेस्पोटिज्म यानी कि रूलर ही होते हैं, मोनार्क होते हैं, क्रूअल रूलर्स होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, उनका शासन दूर करके, उनका रूल दूर करके सबको फ्रीडम दिया जाए। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। तो सभी यूरोप के देश जो थे और एरियाज थे उनको स्वतंत्र नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की प्रक्रिया वो लोग करेंगे। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, अब फ्रांस की जो घटनाएं हुई थी वो यूरोप के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग सिटीज़ में, विविध एरियाज़ में जब वो पहुंची, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो जैकोबिन क्लब हमने ऑलरेडी फ्रांस के बारे में पढ़ा ही था पिछले साल। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, और दूसरे जो सदस्य थे वो सब मिल के एक यूनियन बना के जैकोबिन क्लब बनाते थे और स्वतंत्रता की बातें करते थे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। और उनके कोऑपरेशन की वजह से फ्रेंच आर्मीज़ को सपोर्ट मिला और वो हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड और मच ऑफ इटली में 1790s में उन्होंने एंट्री की,
उनको मुक्त करने के लिए, उनको फ्री करने के लिए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, और जैसे ही क्रांतिकारी युद्ध फैलने लगे सब जगह पे, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड। तो फ्रांस ने अपने आप को स्वतंत्र करके, हमने जैसे देखा हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सबको भी मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी युद्ध स्टार्ट कर दिया। अब एक यहाँ पे मैप दिया गया है और टाइटल हम देखेंगे उसका, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। तो 1815 में यूरोप कैसा था, उसने यहाँ पर एक फिगर दिए, फिगर 3। यू कैन सी द फिगर इन योर बुक इन डिटेल। लेट अस कंटिन्यू विद द लेसन। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब नेपोलियन की बात करते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, वाइड स्वेथ मीन्स स्प्रेड ऑफ टेरिटरी, उसने बहुत सारे राज्यों पे कब्जा किया था, बहुत सारी टेरिटरीज उसके अंडर में थी, दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स, तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स मीन्स नए तरीके अपनाए, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो नई चीज़ें करना चाहता था, रिफॉर्म करना चाहता था, वो दूसरे प्रदेश जो उसके अंडर में होते थे वहाँ पे भी वो लागू करता था। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी, वो तो डेमोक्रेसी जब नेपोलियन ने उसके ऊपर कब्जा किया, तो नेपोलियन तो एक शासक था, रूलर था, मोनार्क था, तो उससे डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय हुई फ्रांस की, नो डाउट है, उसके बारे में कोई शक नहीं है। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन जो शासन था उसका, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन उसका शासन हम लोग बोलते प्रशंसा का था, मीन्स लोग प्रशंसा करते थे, भले वो एक राजा की तरह रूल करता था, मोनार्क था, पर उसने जो अलग अलग सिस्टम्स अपनाए, रिफॉर्म्स अपनाए, क्रांतिकारी नए नए आइडियाज़ उसने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किए, सिस्टम को चेंज किया। मोर रेशनल मीन्स रीजनेबल एक सिस्टम बनाया, एफिशिएंट मीन्स कुशल एक सिस्टम का उसने वहाँ पे हम लोग बोलते स्टार्ट किया, उससे लोग खुश थे। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। तो सिविल कोड जो 1804 का, जिसका नाम दिया गया नेपोलियनिक कोड, क्योंकि उसके ये सब आइडियाज़ थे। डिड अवे मीन्स दूर कर दिया, डिलीट कर दिया या हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, किसको? विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो जन्म से अधिकार मिलते थे, फैसिलिटीज़ मिलती थी, वो दूर हो गए। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, न्याय के सामने, कायदे के सामने सभी समान है, इक्वल है, वो उसने एस्टेब्लिश किया। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और पहले जैसे प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में होती थी, लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी के हक सभी को मिल सकते हैं, ऐसा जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसी का हक रहेगा, ऐसे नियम उसने लागू किए। तो ये एक बहुत अच्छे कदम उसने उठाए थे। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स, और ये जो उसके नियम थे या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, एक्सपोर्टेड मीन्स ये दूसरी जगह भी लागू किए गए। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये सब दूसरी जगह भी लागू किया गया। कौन से रीजन्स? टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जिनके ऊपर फ्रेंच का कंट्रोल था, जिस रीजन्स के ऊपर फ्रेंच का रूल था, तो नेपोलियन ने वहाँ पर भी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो लागू किए। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो हम देख सकते हैं डच यानी कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगह उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उसको सिंप्लीफाई किया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम,
फ्यूडल मीन्स जो मिडल एजेस के सिस्टम थे, पुराने सिस्टम्स थे, गॉथिक जो एजेस का हम लोग बोल सकते थे, रूल्स एंड वो रेगुलेशंस थे, वो सब उसने हटा दिए। एंड फ्रीड पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स को मुक्त किया फ्रॉम सर्फडम, सर्फ का मतलब होता है स्लेव, तो सर्फडम का मतलब है स्लेवरी में से उनको मुक्त किया, गुलामी में से। एंड मैनोरियल ड्यूज, मैनुअल का मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो पीजेंट्स के ऊपर हम लोग बोलते हैं उनके ऊपर चार्जेस लगाते थे, फीस लगाते थे, काम करते थे उनके ऊपर लैंड के ऊपर, तो उनसे चार्जेस वसूल किए जाते थे, उन सब में से उनको मुक्त किया। तो हम लोग बोलते हैं जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम उसने किया। इन द टाउन्स टू, और शहरों में, ये तो रूरल एरियाज़ की बात हुई, लेकिन अर्बन एरियाज टाउन्स में भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। अब गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मर्चेंट्स एट्सेट्रा। तो जो लोग के अंदर सब काम करते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, मर्चेंट्स होते थे, तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, उनके जो रेस्ट्रिक्शंस होते थे या उनका जो कंट्रोल था, उनसे भी लोगों को मुक्त किया, वर्कर्स को या एम्प्लॉयर्स को उनके। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, उसमें अच्छा किया गया बहुत। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। और ये जो एम्प्लॉयर्स थे या वर्कर्स थे, जिनका नाम अभी हमने देखा, पीजेंट्स जो फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे जो कलाकृतियों का काम करते थे, वर्कर्स थे, एंड न्यू बिजनेसमैन, और जो नए बिजनेसमैन बने इस सिस्टम की वजह से, वो एक नए तरीके के स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे और उनको एन्जॉयमेंट मिल रहा था, बहुत खुश थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, जो व्यापारी लोग थे और छोटे छोटे फैक्ट्रीज चलाते थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चलाते, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये लोग ऐसा मानते थे, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉज तो सबके लिए समान कायदा था, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे कि सेम वेट और मेजर्स सब जगह चलने लग गए, कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई, इससे जो व्यापार था बढ़ेगा और गुड्स का मूवमेंट एंड एक्सचेंज बढ़ेगा, और इससे जो पैसा है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में फैलेगा, स्प्रेड होगा। तो ये लोग इन विचारों को बहुत अच्छा मानते थे और ये सब वो लोग खुश थे इन सब चीज़ों की वजह से। However, in the areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. लेकिन जिन जिन प्रदेशों के ऊपर फ्रांस ने कॉन्कर किया था, अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। तो मिक्स्ड प्रतिभाव था लोगों का, कुछ इसको अच्छा मान रहे थे, कुछ इसको अच्छा नहीं मान रहे थे, कुछ खुश थे, कुछ नाखुश थे। इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Harbingers का मतलब a person sent ahead for arrangement, यानी कि उनकी स्वतंत्रता के लिए ये लोग फ्रांस के लोग आए हैं, फ्रेंच की आर्मी आई है, ऐसा वो लोग मानते थे। ये जो लोग थे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड के, फिर ब्रसेल्स, माइंस, मिलान, वॉर्सो, तो उनको वेलकम किया जाता कि कुछ नया करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए ये लोग आए थे। इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा लोगों को लगता था, बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। पर ये जो स्टार्टिंग का उनका एंथुजियाज्म था, एनकरेजमेंट था या उत्साह था, सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, पर अचानक परिस्थिति बदल गई, विपरीत हो गई। हॉस्टिलिटी मीन्स वायलेंट हो गए लोग। एज इट बिकेम क्लियर, क्योंकि अब वो स्पष्ट हो गया that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. अब उनको लगता था कि ये जो नए नए तरीके अपना रहे फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट से, वो उनके पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं है, या पॉलिटिकल फ्रीडम उस तरीके से उनको मिलने वाला नहीं है। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, अब टैक्सेशन बढ़ गया, कर बढ़ गया। सेंसरशिप मीन्स कंट्रोल बढ़ गए। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द
फ्रेंच आर्मीज, जबरन लोगों को रिक्रूट किया गया, फ्रेंच के आर्मीज़ में उनको रिक्रूटमेंट दिया गया, सोल्जर्स बनाया गया ज़बरदस्ती। रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करने के लिए लोगों को जबरन आर्मी में रिक्रूट किया गया। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए चेंजेस किए थे फ्रांस ने, वो अब लोगों को नेगेटिव इफेक्ट लगने लगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं मिलने वाला है। तो ये जो चेंजेस का जो पॉजिटिव थिंकिंग था वो सब अब नेगेटिव थिंकिंग में जाने लगा। एक पिक्चर दी गई है फिगर 4 ऊपर। पहले हम लोग फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तुम देख सकते हो, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वेब्रकन जर्मनी। तो ट्री ऑफ लिबर्टी एक सिंबल है लिबर्टी का, उसका प्लांटिंग मीन्स उसको वहाँ पे रोपा जाता है, वहाँ पे उसको प्लांट किया जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़्वेब्रकन by the French armies. French soldiers recognizable by their blue, white and red uniforms, ये फ्रेंच सोल्जर्स हैं, हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेसर्स, वो लोग लोगों को डरा रहे, धमका रहे अलग अलग तरीके से। एज द सीज, अब बता रहे अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे एक पीजेंट्स कार्ट, वो एक जो हम लोग बोलते हैं खेती वाला है, फार्मर है, उसका कार्ड, उसका जो बुलॉक कार्ड है वो छीन लेते हैं उसे। हरेस सम यंग वीमेन सेंटर फोरग्राउंड, तो सेंटर फोरग्राउंड में बताया कि कुछ स्त्रियों को परेशान कर रहे हैं। एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नीज, और खेडूत को यानी कि फार्मर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा सब फिगर में बताया। द प्लेग, प्लेग का मतलब है यहाँ पर कि एक इंस्क्रिप्शन मेटल के ऊपर होता है, प्लेट के जैसे, जैसे हम लोग पुट्ठों के ऊपर आजकल प्लाकार्ड्स होते हैं, वैसे ही समझो कि मेटल के ऊपर लिखा हुआ था बीइंग एफिक्स टू द ट्री ऑफ लिबर्टी, वो ट्री की लिबर्टी की ट्री पे लगाया जाता है। कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन, और जर्मन में उस पर लिखा हुआ है, विच इन ट्रांसलेशन रीड्स, जिसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, हमसे तुम आज़ादी लो, समानता लो, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये मानवता का एक प्रतीक है, मॉडल है जो तुम हमसे प्राप्त करोगे। दिस इज अ सरकास्टिक रेफरेंस, सरकास्टिक मीन्स वो बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच, जैसे उन्होंने बताया, हम लोग बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के होते हैं अलग, खाने के अलग होते हैं, वैसे वो बोल कुछ रहे हैं लेकिन फिगर कुछ और बता रहा है, उसके ऑपोजिट बता रहा है। एज बीइंग लिबरेटर्स हु अपोज्ड मोनार्की इन द टेरिटरीज दे एंटर्ड, कि हम तुमको स्वतंत्रता देंगे तुम्हारे मोनार्क से, तुम्हारे रूलर से, पर खुद भी तो वैसा ही जैसे रूलर्स करते थे, मोनार्क्स करते थे, वैसा कर रहे हैं। तो बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। और फिगर 5 में बताया, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग। नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, तो ये नेपोलियन बताया गया है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस, जब वो सब टेरिटरीज को कॉन्कर करके फिर से वापस जाता है, रिटर्न होता है फ्रांस में, आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लेप्जिग इन 1813, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग, हर जो कागज़ उसके बैग में से गिर रहा है, बेयर्स द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट, तो धीरे धीरे करके जो उसने कॉन्कर की थी, जिसके ऊपर उसका शासन था, वो सब टेरिटरीज उसके हाथ में से निकल गई, वैसा ये फिल्म या ये फिगर डिटेक्ट करता है या डेपिक्ट करता है। So you understand this page now, I think. I hope we will stop here today and continue the point 2 tomorrow. I hope you have understood. 30% course may be curtailed. Which lessons are there? Let us see. But we have started, and hope that this lesson is there in your syllabus.
So take care, prepare MCQs, objectives, fill in the blanks. As discussed earlier in economics, I have told you this is what you have to do at the end of the lessons. Other questions will be gone, but daily in each lecture you have to do at least prepare the MCQs, objectives, fill in the blanks, match A with B. You can prepare dates, you can remember like this. Mostly 15 questions you can prepare. So it will be a summary of what we have done today. Take care again and good night.